Hello guys, this is CITB Grade A exam analysis from live from exam center. इंग्लिश सेक्शन वाज क्वाइट इजी. Quite easy, okay. हाँ, वो अटेम्प्टेड वो इजीली आप लाइक 70 to 80% आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. Okay. और रहा बात क्वांट और रीजनिंग का, वो भी इजी थे, बट टफ थोड़ा जीए था. वो कंपैरेटिवली वो आरबीआई ग्रेड बी के उसके उस फेज में, यस, उस पैटर्न में वो लोग इस बार थोड़ा इसको कंडक्ट किए हैं. Okay. बाकी सारे चीज़ नॉर्मल थी, बस जनरल अवेयरनेस थोड़े टफ थे. Yes. So do you remember descriptive test? कुछ ऐसे याद है आपको ऐसे का pattern? हाँ, ऐसे में मैंने अटेम्प्ट किया एक रोल ऑफ लिटरेसी फॉर शिफ्टिंग आवर पॉपुलेशन फ्रॉम एग्रेरियन इकोनॉमी टू सर्विस सेक्टर. Okay. ये ऐसे का एक टॉपिक था जो मैंने essay. अटेम्प्ट किया. यस. Okay. और दूसरा ऐसे था हमारा, वेट मेरे को याद करने दो आप प्लीज़. हाँ, रोल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी Role of renewable energy. टू टैकल द क्लाइमेट चेंज, ये दूसरा ऐसे था. और तीसरा जो था बिजनेस लेटर राइटिंग. या वो नॉर्मल, वो बेसिक से नॉर्मल जो लेटर राइटिंग हम लोग लिखते हैं कि किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का हम लोग, ये मेरे को कुछ रिक्वायरमेंट है उस चीज़ के रिगार्डिंग, बस अपने मेरे को कोटेशन चाहिए था कंप्यूटर्स के लिए, दैट्स इट. वो था बिजनेस लेटर राइटिंग. Your attempt out of 160 कितना रहा आपका? Approximate. Wait. नंबर ऑफ क्वेश्चन Yeah. क्वांट एंड रीजनिंग में 50-50 है. Okay. जनरल अवेयरनेस में 50% के अराउंड है. और इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा अटेम्प्ट हुआ है, वो 80% का अराउंड है, लगभग ठीक ठाक है. यस. तो क्या कहना चाहेंगे आप? कंक्लूड कीजिए योर एक्सपीरियंस ऑफ CITB ग्रेड A 2023. ये मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था सिडबी का. और आरबीआई ग्रेड बी के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी है, बट नबार्ड से थोड़ा सा टफ है. यस. कैसा रहा पेपर आपका? So both the papers were quite moderate kind of. Matlab, obviously the essay was kind of easy, but the other sections like maths, English, first a few comprehensions in English was really tough, and then other than that in maths there were few aptitude questions which were kind of moderate to hard. So yeah, matlab if you are preparing then you prepare thorough out. You don't leave anything. And for GK is like matlab if you do it for continuous 4 or 5 months on daily basis, then only it will be easy for you, or else gathering so much of information and keeping it in your head, it's really difficult. Okay. So do you remember number of question you have attempted in general awareness? Yeah, I Approximately 50 attempted में कितना बना आपने? yeah, I attempted nearly 33 questions. Okay. कुछ क्वेश्चन याद है आपको जनरल अवेयरनेस से? जैसे प्रज्वला योजना पे प्रज्वला योजना है जो प्रधानमंत्री schemes योजना से हाँ, पूछी गई थी। स्कीम से पूछा जाता है. फिर उसके बाद कहाँ MOU साइन किया, कौन सा मतलब डिफरेंट स्टेट MOU साइन किया, किसके साथ साइन किया. जी. फिर उसके बाद कब, जैसे प्रज्वला योजना है या कोई भी स्कीम है तो कब वो स्टार्ट हुआ, या कौन ओरिजिनेट किया, कौन इनॉग्रेट किया, उस टाइप. Okay. अब बताइए लॉजिकल रीजनिंग के बारे में. पजल्स या सिटिंग अरेंजमेंट की पैटर्न याद है आपको? हाँ, पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट में मतलब सिंपल ही रहता है, बट यू कैंट डू इट विदाउट प्रैक्टिस. इट्स रियली डिफिकल्ट. Okay. What about maths? Maths, again, as I told, few questions were there which were moderate to difficult and others were easy. Okay. So if you are in a continuous practice, basically all about this exam Practice. is yeah. You be in continuous practice, you will crack through. Okay. Now tell about descriptive. Do you remember any essay topics? Yeah, the essay, Topics? matlab this essay was there ki how does literacy is helping India in transforming from a agri-based country to more service provider. sector, okay, Yeah. okay. One So topic, okay. this was one topic, and the other topic one was to write a letter. Like since you are an HR, considering yourself to be an HR of some organization, you have to organize some this, what do you say that? A training session maybe. Do you know this ERP? So Yeah, ERP. yeah, so for this ERP training, you have to organize a training session and you have to write a mail or letter to all other managers. Okay. So that was one, and one more was there. So basically there were 2 of 200 words and one was for 150 words. This letter wala was Later for 150 words. yeah. और ऐसे 200 वर्ड का 2 क्वेश्चन थे. Yeah. 3 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में था. हाँ. ओके. तो अब ये फर्स्ट अटेम्प्ट था आपको सीडीपी का? Yeah, first time. पेपर ओके था. ओके था, लेकिन एज जानते हैं कि सिडबी का थोड़ा लंबा ही लेंदी रहता है. Okay. तो एक्चुअली टाइम बहुत कम था. टाइम तो बहुत कम था. और मैथ से स्टार्ट करते तो मैथ में मोस्टली सिंप्लीफिकेशन वाज वेरी इजी. ओके. सिंप्लीफिकेशन इजी था, और ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस ये इसका डायग्राम बेस भी था जो पाई चार्ट से आता है. ओके. और आप क्वांट की बात कर रहे हो, मैथ्स की बात कर रहे हो? हाँ, मैथ्स पाई चार्ट आई थी?
पाई चार्ट यानी कि जो डायग्राम बना के जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था वो था, और प्लस मोस्टली ये आपका ये रहता है जैसे कि ये सिंपल इंटरेस्ट से हो गया, फिर उसके बाद ये कुछ मिसलेनियस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले थे। ये आपका एक क्वाड्रेटिक भी था और क्वाड्रेटिक कितने 5 थे? हाँ 5, ओके ये सिंप्लीफिकेशन भी 5 था। मोस्टली सब 5-5 के सेट्स में ही थे। ओके, व्हाट अबाउट लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बताइए। रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट कुछ याद है आपको? पैटर्न बेसिकली पैटर्न में रीजनिंग मोस्टली बेस्ड ये कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का था, यानी कि था बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, बड़े बड़े लेंदी स्टेटमेंट थे। लेंदी स्टेटमेंट थे, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग कर रहा था। तो क्या था, डे मंथ वाइज था या डेट वाइज था या सर्टेन पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट कुछ याद है? यानी कि जैसे कि एक तो बेसिकली जो ये बहुत कॉमन था ये कि अरेंजमेंट वाला, जैसे कि सिटिंग सर्कुलर था, लीनियर भी था, फिर और एक तो था मोस्टली ये था कि जस्ट लाइक ए डायरेक्शन, जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन थोड़ा दूर जाता है, फिर लेफ्ट टर्न करता, राइट टर्न करता, ये सब में था। और प्लस जनरल अवेयरनेस के बारे में, जर्नल अवेयरनेस में जैसे कि कुछ मोस्टली जो योजना रहता है, स्कीम के बारे में पूछा स्कीम, गया था। मोस्टली स्कीम्स था। और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर्स में क्या क्या ये रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आता है, तो वो था। लेकिन 80 to 70% मेरे को योजना ही लगा उसमें। जो करंट अफेयर आया था हाँ। तो लास्ट 6 मंथ का था, लास्ट 1 ईयर का था? आई गेस 3 to 4 मंथ्स का होगा, उससे ज़्यादा एकदम। और कुछ ईयर्स का, हाँ 3 to 4 मंथ्स। 3 to 4 मंथ हाँ, दिसंबर का 2022 जो रिसेंटली पार हुआ से नवंबर आसपास, यही सब का था बेसिकली। ओके, डिस्क्रिप्टिव में कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने, जो याद है आपको? डिस्क्रिप्टिव्स में ऐसे के बारे में बताएंगे जो आपने अटेम्प्ट किया, या फिर कुछ क्वेश्चन याद है ऐसे आपको? में ये 3 था। ओके। एक ये 2 ऐसे था और एक लेटर, बिजनेस लेटर राइटिंग था। तो बेसिकली जो फर्स्ट ऐसे था उसमें मैंने अटेम्प्ट किया कुछ रिलेटेड टू इंडियाज़ इंफ्रास्ट्रक्चर रिगार्डिंग हेल्थ केयर। ओके, नेक्स्ट ऐसे नेक्स्ट ऐसे लेटर याद है आपको? लेटर याद है कि जैसे कि लेटर मेरे को याद है, लेटर में था जैसे कि मी बीइंग अ पार्ट ऑफ अ कंपनी, आई हैव टू ऑर्डर 25 सेट ऑफ कंप्यूटर्स फॉर माय ओन कंपनी। सो आई नीड अ कोटेशन फॉर एनी होलसेल कंपनी, तो उसके लिए मेरे को लेटर लिखना था, रिक्वेस्टिंग फॉर अ कोटेशन। ओके, चलिए आप कंक्लूड कीजिए। अकॉर्डिंग टू यू एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? क्या कहना चाहिए, पेपर का लेवल जो है इजी, मॉडरेट और हार्ड, क्या कहना चाहिए? मॉडरेट था। मॉडरेट था, हाँ, लेकिन लेंदी था, यानी कि ये टाइम बेस्ड क्वेश्चन है, तो इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ टाइम इट्स गुड फॉर यू। ओके, चलिए और आपका अच्छा रहा। अच्छा रहा? हाँ। चलिए आप डिस्क्रिप्टिव से स्टार्ट कीजिए। डिस्क्रिप्टिव में वो ये कंप्यूटर 25 कंप्यूटर मंगवाना था, ओके। ये आईटी सेक्टर से। ओके, लेटर की बात कर रहे हैं आप? हाँ, लेटर की। और एक था रूरल डेवलपमेंट में, रूरल जैसे वहाँ पे सेक्टर में किस तरह से हम लोग वो डेवलपमेंट करना था। हाँ, रूरल सेक्टर में किस तरह का डेवलपमेंट कर सकते हाँ, हैं? इलिटरेट जो लिटरेट लोग हैं ना, उस तरह से कैसे, मतलब वो सोचे बैंक सेक्टर में, ओके। बैंक सेक्टर में कैसे हम लोग जाएंगे, और मतलब उसमें चार्ज जो डिडक्ट होता है ना, पैसा कटता है, जो हम लोग जैसे बैंक में जाते हैं, कोई अदर बैंक में जाते हैं तो पैसा डिडक्ट हो जाता है ना हम लोग का, सेविंग अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, वो आया था। और एक लिटरेट वाला आया था, लिटरेट और एसी की बात कर रहे हो आप? हाँ, ऐसे। और एक लेटर आया था। जी, लेटर आपने बताया कंप्यूटर के बारे में। हाँ, कंप्यूटर कोटेशन ID देना था 25 कंप्यूटर के बारे में। हाँ, ओके। हाँ। चलिए अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बारे में। हाँ। 160 में आपने कितना बनाया अप्रोक्सीमेट? 40 लॉजिकल रीजनिंग, हाँ। 50 मार्क्स जनरल अवेयरनेस, 30% इंग्लिश, राइट? हाँ। तो 160 टोटल होते हैं। हाँ। अप्रोक्सीमेट आपने कितना बनाया? अप्रोक्सीमेट 120 अटेम्प्ट रहा आपका। हाँ। ओके, चलिए कौन सी सेक्शन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगा आपको आउट ऑफ 4? ऐसे जब रीजनिंग बनता नहीं है तब तो वो ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। ऐसे बहुत अच्छा था क्वेश्चन, लेकिन फंसाने वाला क्वेश्चन था। ओके, हाँ। तो कुछ याद है आपको पैटर्न सिटिंग हाँ, अरेंजमेंट? हाँ, पैटर्न याद है। वो क्या बोलते हैं, एक बैंक जो बैंक के ऑफिसर्स है, डेजिग्नेशन बेस्ड था। हाँ, डेजिग्नेशन बैंक जो- ओके, बेस्ड। हाँ, ओके, उसमें एक पर्सन था, और उसमें वो क्या बोलते हैं, टी कॉफ़ी और ये सब चीज़ उसमें था। ओके, designation 2 based, वेरिएबल, हाँ तो इससे थोड़ा लेंथी था। हाँ, वो वाला था। और फिर एक ये रो वाइज नहीं, सर्कुलर रो में बैठे हुए थे। सर्कुलर अरेंजमेंट, ओके। हाँ, सर्कुलर रो में बैठे थे। इनसाइड या आउटसाइड था? इनसाइड भी था, आउटसाइड, दोनों mix सम था। आउटसाइड और सम ओके, इनसाइड। और ये रीजनिंग में अच्छा, और वो ये सिलॉक्स था। ओके, मैथ्स के बारे में बताइए। हाँ, मैथ्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 था। ओके, और फिर ये अप्रोक्सीमेशन था 5 या 6, हम काउंट नहीं किए। ओके, approximately 5 का set होगा। हाँ, मिसलिनियस क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। अच्छा था। और डीआई तो बहुत ही अच्छा था, डीआई। क्या पैटर्न याद है आपको? हाँ, ये पाई चार्ट था। 1 पाई चार्ट। हाँ, और एक टेबुलर भी था। One tabular, one यदि pie chart। ये रेशियो में मेल फीमेल, ओके। और मेल और फीमेल था।
और बस इतना ही, मेल फीमेल था और पूरा टोटल दिया हुआ था, एक फीमेल दिए थे परसेंटेज में और मेल और फीमेल रेशियो में निकाला था। अब बताइए जनरल अवेयरनेस के बारे में। जनरल अवेयरनेस भी आसान था, वही जो KYC से रिलेटेड था, फिर बैंक से रिलेटेड कि हम लोगों को ये वुमेंस में और ये क्या बोलते हैं, जितना भी सेविंग अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट जितना भी था ना, वो सब इसमें जो सेक्शन था करंट अफेयर में, इसमें हाँ। इकोनॉमिक एंड सोशल का भी ऐड हाँ हुआ हाँ था। हाँ हाँ उससे क्वेश्चन आए थे। हाँ, आए थे। कितना था अप्रोक्सीमेट 10 या 12? हाँ 10 आए होंगे, 10 आए थे और बहुत कुछ मैं नहीं देख पाई, पर मतलब लगभग देखी हो, बहुत सारा देखी है। ओके, तो आपने अटेम्प्ट कितना किया जनरल अवेयरनेस सेक्शन में? आफ्टर 50 में मेरा होगा Approximate 36 होगा। 36 हाँ हाँ हाँ। ओके, तो क्या सजेशन देने वाले हैं आप आने वाले एस्पायरेंट को, नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन देंगे? हाँ। जो आपसे गलतियां हुई हाँ हैं, कुछ 2015 से भी रिलेटेड जनरल अवेयरनेस पूछा गया था। स्कीम वगैरह पूछा गया हाँ था? 2015 पूछा से, गया था। फिर 2014 से भी था, जो कि अभी रिसेंट का नहीं है, 6 ईयर बैक का नहीं है, मतलब 6 Static मंथ question बैक भी का ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन पूछे गए थे, हाँ static। वो भी था। ओके। हाँ कुछ मतलब ज़्यादा पीछे का था, जो कि हम लोग नहीं पढ़ पाए थे। ओके, हाँ। तो आपके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स को पीछे का भी ध्यान पीछे देने की का भी, जरूरत है। लेकिन उतना तो पॉसिबल ही नहीं है ना। 2014 का कहाँ से आ जाएगा, 12 से आ जाता है, 15 से आ गया था, ओके, तो 14। static question ज़्यादा हाँ यूज होगा। हाँ, लेकिन ज़्यादातर वो 6 मंथ तक ही था, 6 ज़्यादा month current affair था। हाँ हाँ, जुलाई से लेकर दिसंबर तक ज़्यादा था, जनवरी का 1 या 2 क्वेश्चन था। ओके, चलिए।